tragic news has emerged from the heart of the ongoing farmer protests at the Khanauri border. The Haryana Youth Congress has raised serious allegations against the Haryana police, claiming that a 21-year-old farmer from Punjab lost his life due to police action against peaceful protests. However, the Haryana police is vehemently denying these allegations, dismissing them as mere rumors. The deceased has been identified as Shubhkaran Singh, a young man aged between 21 and 22 from Ballo village in Bhatinda district from Punjab. The official handle of the Youth Congress expressed their grief on social media, stating that Shubhkaran tragically lost his life due to police action against peaceful farmer protests at the Khanauri border. The Youth Congress demands justice for Shubhkaran and calls for an immediate, peaceful resolution to the ongoing protests. In a social media post, they expressed their concern, saying, "This violence against our youth and farmers must end." However, countering these claims, the Haryana police also on social media insisted that according to the information they have received, no farmer has died today. The police categorically label the reports as rumors and provide different information about 2 policemen and 1 protester being injured at the Datta Singh Khanauri border. According to the complexity of the situation, Sukhpal Singh Khaira, the MLA from Bholat and chairman of All India Kisan Congress, alleged that Shubhkaran's death was a result of Haryana police's intrusion. He expressed his condolences to the family of the deceased and criticized the Haryana police for their actions. Khaira also called for Bhagwant Mann, accusing him of being a mute spectator of the intrusion by Haryana police into Punjab territory. The incident unfolded on Wednesday when Haryana police fired tear gas shells to disperse farmers from Punjab at Shambhu and Khanauri border points. This comes just 2 days after the 4th round of talks between the farmers and the government failed to reach a resolution over key demands, including a legal guarantee for minimum support price or MSP for crops and farm debt waiver. बहुत दुख के साथ हमारे को ये बताना पड़ रहा है सारे देश के किसानों और लोगों को कि हमारे पंजाब का एक नौजवान 22-23 साल का किसान शुभकरण सिंह जो बठिंडा ज़िले का रहने वाला था, आज खनौरी बॉर्डर पंजाब के ऊपर हरियाणा पुलिस ने उसको गोली मार करके उसकी हत्या कर दी। और उस वक्त गोलियां चला रहे हैं, टेयर गैस शेल्स छोड़ रहे हैं, रबर बुलेट्स मार रहे हैं, जब वो बिल्कुल निहत्थे हैं और शांतमयी तरीके से पिछले 13 फरवरी से शंभू और खनौरी बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं। लेकिन हमारे देश की सरकार, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब बिल्कुल चुप बैठे हैं। उनके ऊपर उल्टा एक बैरिकेडिंग करके एक अलग बॉर्डर बना के अपने ही देश के किसानों को दिल्ली की तरफ आने से जो रोका जा रहा है, ये बहुत बुरी बात। और इससे पहले हरियाणा पुलिस ने पंजाब की टेरिटरी के अंदर घुस के ड्रोन्स के ज़रिए हमारे 200-250 किसानों को बहुत बुरी तरह से इंजर किया है। बहुत ज़्यादा उनके चोटें लगी हैं, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और वो क्या मांग रहे हैं? वो इस देश के अन्नदाता के लिए, किसान खेत मजदूर के लिए वाजिब MSP के कानून मांग रहे हैं। वो कोई इस तरह की बात कोई कर नहीं रहे जिससे किसी तरह का भी तनाव या खराबी। और पिछले 1.25 साल के आंदोलन में हमारे किसानों ने दिल्ली में बैठ करके ये बता दिया कि ये मुकम्मल, दे आर एब्सोल्युटली नॉन वायलेंट। अब वायलेंस कौन कर रहा है? वो हरियाणा की पुलिस वहाँ से हमारे किसानों के ऊपर जो अत्याचार कर रही है। आज उस जो नौजवान मरा है, हमारी मांग है कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप उनको खुद इंटरफेयर करना चाहिए। जो गिल्टी पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ 302 का मुकदमा होना चाहिए। जो 200-250 किसान इंजर किए उनके खिलाफ गिल्टी पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये किसानों को पीसफुल तरीके से दिल्ली में कोई जगह एलोकेट कर दे, वहाँ पर बैठ कर के वो अपनी बात कहेंगे। और MSP जो एक लीगल गारंटी प्रॉमिस किया था बीजेपी ने पिछली बार, और जो इनका कर्जे की बात है, एक तरफ आप 15 लाख करोड़ रुपया कॉरपोरेट का तो माफ़ कर रहे हैं, लेकिन इन गरीब किसानों का, जो करोड़ों किसान के परिवार हैं, उनका किसी ने कर्जे की बात नहीं सुनी। याद रहे कि यही किसान जो हैं, इनके ही बच्चे बॉर्डर्स के ऊपर चाइना के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हैं, मरते हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि किसी बीजेपी का लीडर इस देश के लिए लड़ता हुआ उसकी कोई शहादत हुई हो। तो उम्मीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इस बार उठेंगे, हमारे किसानों के साथ बात करेंगे, क्योंकि हमारे किसान बिल्कुल जैसे बोल रहा हूँ कि निहत्ते वहाँ पर इस मौसम में सड़कों के ऊपर पिछले 7 दिन से बैठे हों और अपनी जायज़ और लेजिटिमेट जो उनकी डिमांड्स हैं उसको पूरा करवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उनके खिलाफ इस तरह का अत्याचार करेंगे तो ये समझ लेना
कि उस भगवान और इंसानियत के खिलाफ आप अत्याचार कर रहे हैं। Subscribe to One India channel and never miss an update.